Hello everyone, welcome to session. So this is time, speed and distance part 6. And in previous sessions, we have covered these topics and today we'll be discussing boat and stream. So if you have observed one thing till now, like the questions, the topics that we have discussed, like the normal questions where two-person were moving, motorcycle, car and all the thing were moving. And then we have done like where trains were traveling on railway track. So if you have seen this thing, that road and railway track. So till now, whatever path we are taking, whatever track we are using, that was not moving. Like road was not moving, railway track was not moving. But now, the questions, the topic that we're going to discuss is boat and stream, where there will be water and water will be moving. So now your path, your track will be also moving. So we're going to discuss those concepts. So let's first understand one basic thing. So suppose this is your river and river is flowing in this direction. Your water is flowing like this in the river, and there is a boat, and there is a boat. This is a boat, and let's suppose first situation. तो यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है. एक तो हो सकता है कि बोट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर. वन सिचुएशन विल बी boat will move in the direction of water, and second situation will be boat will move in opposite to the direction of water. I hope this point clear. So we have to understand this thing, and on the basis of this we'll be able to solve all the questions. तो यहाँ पर जो बोट की डायरेक्शन है रिवर की डायरेक्शन में, यहाँ पर जो बोट की डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द रिवर. तो दोनों ही सिचुएशन देखते हैं. तो यहाँ पर देखो लाइक देयर विल बी सम स्पीड ऑफ बोट. पहले ये सिचुएशन देखते हैं. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. When your boat is moving in the direction of river, then that situation is called downstream. And this situation where the direction of boat is opposite to the direction of water, that will call upstream. And if boat wants to travel some distance here, है ना, boat stream like speed of boat here can be zero also. Still that boat will be moving with the flow of the water. And let's say boat has a speed of b. Boat's speed is b. Speed of river is r. So what will be the total speed with which boat will be moving? Total speed with which boat will be moving, that will be b plus r. That will be b plus r. So this is called downstream speed. This is called downstream speed. Downstream speed will be speed of boat plus speed of river, because river will be also moving, that will give also push to the boat. So that's why the speed of boat will be increases by r. What will be here? Suppose speed of boat. Speed of boat means when water is not moving, that is the speed of the boat. Like boat will move with the speed of b when water is not traveling. Suppose boat water को still कर दिया जाए, then boat will travel at the speed of b kilometer per hour, b unit basically. Also same thing. तो यहाँ पर जो स्पीड है तुम्हारी that is upstream, and now water will push against. Water will like here your boat is traveling opposite to the direction of river, opposite to the direction of flow of water. So that's why water will push boat to backward. So that's why your speed will decrease. And here one thing is important, that if speed of boat is not greater than river, then boat will not able to move. Then boat will not be able to travel. Fine. I hope you are now able to understood what is downstream, what is upstream, what are these speeds, and how these things are traveling and all the thing. And again remember, don't try to think here in the term of relative speed. मतलब ये मत सोचना कि ये relative speed, ये relative नहीं, this is different. ये add हो रहे हैं. यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रही है, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वलेंट टू रिलेटिव स्पीड. दिस इज लाइक गिविंग अ पुश. यहाँ पर रिवर बोट को पुश कर रही है. फाइन. अब जैसे फुल डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर. अगर सेम डायरेक्शन में तो पुशिंग इन द लाइक फ्लो, लाइक उसको फॉरवर्ड पुश करेगी. अगर अपोजिट में मूव कर रही है तो उसको बैकवर्ड पुश करेगी. तो दिस इज यही मैंने भी बताया, डाउन स्ट्रीम स्पीड, बोट स्ट्रीम स्पीड. अच्छा, अगर तुम्हें डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हो और अप स्ट्रीम स्पीड दी हो, तो बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड, ऐसे जो रिवर स्पीड, ठीक है, ऐसे तुम्हारी रिवर की स्पीड है, ये तुम्हारी बोट की स्पीड है. तो ये कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन है बेसिकली तुम्हारा सिंपल.
क्योंकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्टली यू कैन डू लाइक दिस। डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सीधा डी प्लस यू बाई टू, एस इक्वल टू डी माइनस यू बाई टू। ठीक है, सिंपल, ऐसे याद कर सकते हो। बोट की जो स्पीड होगी डेट विल बी डाउनवर्ड स्पीड प्लस अपवर्ड स्पीड बाय टू। अब देखो बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, अभी मैंने तुम्हें बताया बोट की स्पीड रिवर से ज़्यादा होनी पड़ेगी अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों ट्रेवल हो रहे हैं, अदरवाइज अप स्ट्रीम ट्रेवल विल नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो बोट की स्पीड में प्लस होगा, ऐसा याद कर सकते हो। दिस इज आई एम टेलिंग अ वे टू मेमोराइज दिस थिंग। और तुम्हारे रिवर का जो स्पीड होगा वो कम होगा, तो डी माइनस यू बाई टू, सॉरी बाई टू। Okay, so this is the basic of your boat and stream. If you are conceptually clear with the previous concepts like relative speed, average speed, you know, all the basic concept d equal to st, all type of equation that I've told you like d equal to s1, s2. If you are clear with these all concepts till now that we have done, and you know this information about boat and stream, then you can solve question much easier. Okay, now let's see. A swimmer swims a distance of 72 km in 12 hours downstream and distance of 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो अभी मैंने तुम्हें बताया, तो ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर रही इतने टाइम में, सो 72/12 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, दैट इज 80/16 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता था, सब्ट्रैक्ट करते ना, 6 - 5/2 दैट इज 1/2 that is 0.5 kilometer per hour. The speed of stream here is 0.5 kilometer per hour. The rowing speed of a man in still water is this. Rowing speed of a man in still water. So basically man की stream बोलो या boat की speed बोल लो, that is in still water that is 7.5 kilometer per hour. In a river flowing, river की जो speed है, water की जो speed है that is 1.5 kilometer per hour. It takes same boatman 50 minutes to row a certain distance and come back. Okay. अब देखो इसको सॉल्व करने का गेन बहुत मेथड हो सकते हैं, बट आई एम गोना टेल यू बेसिक मेथड जो अभी तक हम करते हैं। आई विल नॉट टेल यू एनी हाई फाई, एनी रेशियो, एनी प्रोपोर्शन मेथड, जस्ट सिंपल मेथड जो तुम्हें समझ में आए और जो अभी तक हमने सीखा है। यहाँ पर देखो दो स्पीड से ट्रेवल होगा, लाइक सेम डिस्टेंस है, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, है ना, यही हुआ। इट टेक्स सेम बोटमैन 15 मिनट्स टू रो सर्टेन डिस्टेंस एंड कम बैक। और जाते टाइम स्पीड कितनी रही होगी, सपोज रिवर का फ्लो ये डायरेक्शन है, तो जाते टाइम स्पीड रही होगी 9, दोनों का सम। आते टाइम कितनी रही होगी 6। तो टू डिफरेंट स्पीड सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 9 × 6 एंड यू नो द टोटल टाइम इज 50 मिनट। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 5 3 दैट इज 3 किलोमीटर। ओके, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी लाइक, बट आई थिंक इससे बेसिक क्या ही होगा, है ना। इससे बेसिक मतलब तुम अज्यूम करके एक्स वाई वो करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो चेक कर लेना तुम कैसे करोगे। इफ अ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लो ऑफ करंट इज दिस, हाउ फार कैन अ बोट रो डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स। हाउ फार कैन अ, ओके, तो सेम क्वेश्चन, दिस इज द सेम क्वेश्चन, ये दोनों स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और तुमसे डिस्टेंस पूछा है। तो लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर। ठीक है, आई ट्रेवल फॉर 2 आवर डाउन स्ट्रीम एंड देन फॉर 2 आवर अप स्ट्रीम आई एम 8 सिस्टम, आई एम 8 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। अच्छा, इसको तो एक तो कॉन्सेप्चुअली सोच के सॉल्व कर सकते हैं, अदर वे इक्वेशन बना के कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स सी इक्वेशन बना के कैसे करेंगे। आई ट्रेवल 2 आवर डाउन स्ट्रीम एंड देन 2 आवर फॉर अप स्ट्रीम। तो लाइक ऐसे मैं डाउन स्ट्रीम पहले जाऊंगा और फिर 2 आवर अप स्ट्रीम वापस आऊंगा। अगर मैं 2 आवर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा हूँ, डेट इज डी, लाइक बोट और रिवर की स्पीड को ऐड करते हैं ना। 2 आवर में डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा हूँ विद द स्पीड ऑफ योर, लेट्स से बोट की एक्स ले लेते हैं और रिवर की आर ले लेते हैं।
देन अगर 2 आवर ही मैं ट्रेवल करूंगा अप स्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, मैं कहीं यहाँ पर पहुंचूंगा, बिकॉज अब स्पीड तो कम हो गई। अगर स्पीड कम हो गई है और सेम टाइम में डिस्टेंस कम ट्रेवल होगी, तो आई एम 16 किलोमीटर अवे, दिस इज गिवन 16 किलोमीटर अवे। तो अभी देखो डिस्टेंस पहले कितनी ट्रेवल होगी, 2 आवर में एक्स प्लस आर की स्पीड से, दिस इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस आर। देन देखो, और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, डी माइनस 16। ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं डी ले लेता हूँ तो बचेगी कितनी डिस्टेंस, डी माइनस 16, दैट इज कवर्ड इन 2 आवर विद द स्पीड ऑफ एक्स माइनस आर। अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन को देखो, इट सीम्स टू बी दैट दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सोल्व। क्यों? 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है ना। ऐसा मतलब जल्दी में ऐसा मार्क मत कर देना, बट दिस कैन बी सॉल्व। देखो कैसे करेंगे, 3 माइनस 2x 2r आ जाएगा, 3 माइनस 2x माइनस 2r प्लस 16 आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दो, 2r इक्वल्स टू माइनस 2r प्लस 16, दैट इज 4r इक्वल्स टू 16। स्पीड ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, यही हमें निकालना था। तो दिस इज द वन वे। अब इसको अगर कॉन्सेप्चुअली सोचो, इक्वेशन वगैरह ना बना के, देन ऐसा सोचो जरा, ये तुम्हारा लाइक बोट है, एंड नाउ लेट्स डू दिस विद द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर भी देखो क्या जूम किया जा रहा है कि योर रिवर फ्लो कर रही है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन में भी यूज होगा। आई विल डू लाइक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आगे आने वाले सेशन में, देयर दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज, सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोट एंड स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लाइक रिवर फ्लो नहीं कर रही, देर इज नो रिवर। आई हैव अज्यूम्ड वन थिंग दैट देर इज नो रिवर, मैंने अज्यूम किया कोई रिवर नहीं है। तो जैसे ये पर्सन है, ये 2 किलोमीटर जाएगा और 2 किलोमीटर वापस आएगा, तो यहाँ पे वापस आ जाना चाहिए। विल हैपन और नॉट? इफ देर इज नो रिवर, अगर रिवर नहीं है तो 2 किलोमीटर जितना जाता है उतना ही 2 आवर में वापस आ जाएगा। इफ देर इज नो रिवर, it takes 2 hours to go from A to B, it will take 2 hours to come from B to A, same time लगेगा। but there is a distance of 16 किलोमीटर, and why this is, ये क्यों है? this is because of river। this 16 किलोमीटर का गैप जो है ये रिवर की वजह से, क्योंकि साथ में जब ये पर्सन एक्स की स्पीड से चल रहा है, रिवर भी आर की स्पीड से फ्लो हो रही है, तो रिवर भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, and this distance is creating a difference of 16 kilometers. Due to this speed, there is a difference that has been created of 16 kilometers. तो ये टोटल कितनी देर ट्रेवल किया, 2 आवर ऐसे, 2 आवर ऐसे, 4 आवर रिवर तुम्हें ट्रेवल करती रही है। तो रिवर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 4r इक्वल्स टू 16, तो रिवर की स्पीड हो गई है 4 किलोमीटर पर। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा ध्यान से सोचना, एंड क्वेश्चंस विल बिकम मच इजियर एज कम्पेयर टू इक्वेशन। अब सोचो अगर तुम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो एग्जाम में, कितनी जल्दी सोल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि तुम इक्वेशन बना के करो। एंड आई एम टेलिंग, इक्वेशन बनाने में लाइक एटलीस्ट 30-40 इवन 50-60% जनता ये मिस्टेक कर देगी अगर ऑप्शन में दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दे विल सी दैट 3 अननोन्स टू इक्वेशन एंड दे माइट मार्क दिस एज अ रॉन्ग। A boat travels for 3 hours downstream and then turns back and rows for next 3 upstream. The boat is at 30 kilometers, same question है। I will also I will show you कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन से तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, इक्वेशन से सॉल्व करके बताना इफ यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट। आई एम गोना टेल यू विदाउट इक्वेशन। फिर से तुम्हें अज्यूम करना है कि देर इज नो रिवर, देर इज नो रिवर, तो ये 3 आवर ऐसे जाएगा और 3 आवर वापस अपने पॉइंट पर आ जाएगा। अगर रिवर नहीं होती तो अपने पॉइंट पर वापस आ जाता, बट देर इज अ गैप ऑफ 30 किलोमीटर एंड दिस गैप इज ड्यू टू रिवर, बिकॉज ये 6 आवर की पूरी जर्नी में रिवर भी आर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है एंड उसकी वजह से 30 किलोमीटर का गैप क्रिएट हुआ है, तो रिवर की स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। 2 boats are rowing towards each other in a stream. One is going downstream from A to B. Okay, 2 boats. Now there are 2 boats. One boat is here
लेट्स से बोट बी ए पॉइंट पर है और बी पॉइंट पर है. One is going downstream, point A to B. So river is flowing. It means in this way, and other is upstream from B to A. So other is upstream. This is Q. Boat. If there is speed in still water, इसकी speed 12 है, इसकी speed 8 है. Distance is 2 kilometer. How long it will take them to meet? तो ये क्वेश्चन जस्ट कराने का मेरा एक ही पर्पस है. दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पर देखो रिवर की स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो रिवर की स्पीड से कोई फर्क पड़ेगा. सपोज रिवर की स्पीड x है, यू हैव टू नाउ सी द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट्स. यहाँ पर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर तुम्हें याद हो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ से एक पर्सन मूव करता है, यहाँ से एक पर्सन मूव करता है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है और ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल के रिलेटिव डिस्टेंस हम टाइम निकाल लेते हैं. दिस इज द वे. यहाँ पर भी सेम चीज़ है. अच्छा, अगर एक और चीज़ देखो, जस्ट सी द बिगर पिक्चर. जस्ट सी द बिगर पिक्चर. ये दो पर्सन जो मूव कर रहे हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा पाथ है, जो हमारा लाइक अर्थ है ना, जिस पे मूव कर रहे हैं, दैट इज नॉट मूविंग. बट अगर रियलिटी में देखो अर्थ भी मूव कर रही है ना, रियलिटी में देखो अर्थ भी मूव कर रही है, तो इनकी एक्चुअल स्पीड तो कुछ और हो जाएगी. एक्चुअल स्पीड इनकी कुछ और हो जाएगी. जैसे यहाँ पर रिवर मूव कर रही है, वैसे यहाँ पर अर्थ मूव कर रही है, बट इनकी रिलेटिव स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रीजन बीइंग, दोनों का पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम है. दोनों का पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर अर्थ है, दोनों का यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस रिवर है. देयर रिलेटिव स्पीड विल नॉट बी अफेक्टेड. ऐसा सोचो, जब तुम ट्रेन में या बस में होते हो, है ना, जब तुम ट्रेन या बस में होते हो, तो लाइक दोनों लोग ट्रेवल कर रहे हो, वैसे तो देखो ये बोथ पीपल आर ट्रेवलिंग, है ना, बट तुम्हें दोनों लोगों की स्पीड जीरो दिखाई देती है, जीरो. अब ये पर्सन अगर सपोज लाइक 1 किलोमीटर आवर से तुम्हारे पास में आ रहा है, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, तो तुम्हें क्या लगेगा दैट ये 1 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है. यू विल नॉट फाइंड कि लाइक अगर बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, यू विल नॉट फाइंड दैट 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है ना. तुम्हें यू विल लाइक तुम्हें ऐसा लगेगा कि 1 किलोमीटर आवर की स्पीड से ही आ रहा है. रीजन बिंग, दोनों का पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम है. बट अगर ये बाहर से कोई बंदा देखेगा, इफ सम पर्सन सिट आउटसाइड, ही विल सी, ही आर सी विल सी दैट ये 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पर्सन की ओर जा रहा है. तो दिस इज टोटल गेम ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. तो यहाँ पर रिवर में पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम है, दोनों ही एक ही रेफरेंस से हैं. दैट्स वाई जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, अब देखो अगर मैं एक्स एज्यूम कर लूँ, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों का 8, तो इसकी स्पीड होगी 12 प्लस एक्स, इसकी स्पीड होगी 8 माइनस एक्स. रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगी. तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स मोशन. रिवर्स की स्पीड से इंडिपेंडेंट है ये क्वेश्चन. ठीक है, तो बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने पहले कर रखे हैं. 20 की स्पीड से 2 किलोमीटर है, तो दैट इज 1/10, तो दैट इज 6 मिनट. 6 मिनट इज योर आंसर. Two boats are traveling at speed of this head directly towards each other. They begin at a distance of 20 kilometers from each other. How far apart are they 1 minute before they collide? तो टू बोट से अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि डेट रिवर की स्पीड मैटर नहीं करेगी. टू बोट्स ट्रेवलिंग 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, हेड डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर. दे बिगिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. अब तुमसे पूछ रहा है दैट 1 मिनट के बाद वो कोलाइड करेंगे, 1 मिनट के बाद दे विल कोलाइड, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी. तो एक और चीज, बिफोर यू सी द सॉल्यूशन मुझे बताना कि लाइक इसका इससे कोई मतलब है. इज दिस रिक्वायर्ड, इज दिस नीडेड टू मेंशन हियर. इस 20 ये रिडंडेंट डेटा है ना, इस 20 किलोमीटर रिडंडेंट डेटा है ना. राइट, तो तुम्हें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को उल्टा सोचो. 1 मिनट में ये 1 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दैट इज योर आंसर. तभी तो कोलाइड करेंगे, जब 1 मिनट में डिस्टेंस कंप्लीट कर लेंगे देन दे विल कोलाइड. तो इनकी रिलेटिव स्पीड है 15 एंड इन 1 मिनट दे विल कवर दिस. तो 1/4 किलोमीटर इज योर आंसर. सिंपल. यू हैव टू थिंक इन रिवर्स कि लाइक 1 मिनट के बाद वो कोलाइड करेंगे, तो जब वो कोलाइड करेंगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, दैट दे हैव आस्क्ड. सिंपल. एंड दे विल कोलाइड इन 1 मिनट. ओके, तो दीज वर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस. अब तुम्हारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो जिसमें डिफरेंट वेज आई विल बी टेलिंग यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना सिंपल है, जस्ट प्रॉब्लम आता है इसको सॉल्व करने में। जस्ट लाइक समटाइम्स हम ऑप्शन यूज करके सॉल्व करते हैं, डिफरेंट वेज हम ट्राई करते हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल द इक्वेशन। जस्ट क्वेश्चन आसान होते हैं। तो देखो क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है एग्जाम में लोग इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आई एम गोना टेल यू कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर दैट देयर विल बी लाइक टू डिफरेंट अप्रोचेस। तो पहले बेसिक अप्रोच में तुम्हें बताता हूँ इक्वेशन से कैसे करेंगे, और फिर इक्वेशन दैट इज अप टू यू, इक्वेशन कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हो। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू टू डिफरेंट अप्रोचेस so that you can handle the calculation, ठीक है, easily. A man can row 50 kilometer upstream and 72 kilometer downstream in 9 hours. So total time, अच्छा एक और चीज पहले देख लो। एक तो होगा कि लाइक टोटल टाइम दिया होगा, टोटल टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, टोटल जैसे ये वाला सिचुएशन है, टोटल टाइम में 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड सम किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी लाइक ये यहाँ पर लिख दोगे जितना डिस्टेंस होगा 50 किलोमीटर। अगर अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, और 70 डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। तो ये टाइम अप स्ट्रीम में लगा, ये टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा, और टोटल टाइम दैट इज गिवन। तो दिस इज द वन इक्वेशन, ऐसे बनती। दूसरी इक्वेशन होती है जब टोटल डिस्टेंस दिया होता है, देन टोटल डिस्टेंस दिया होगा, टोटल डिस्टेंस, और तुम्हें टाइम दिया होगा। यहाँ पर जैसे डिस्टेंस दिया होगा तो वहाँ पर टाइम दिया होगा कि लाइक 10 आवर्स के लिए अप स्ट्रीम एंड 15 आवर्स के लिए डाउन स्ट्रीम, और टोटल डिस्टेंस दिया होगा। वहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक्स माइनस वाई, ये तुम्हारा 10 जितना टाइम लगा तुम्हें, प्लस एक्स प्लस वाई और 15 आवर। तो ये टू टाइप ऑफ इक्वेशन, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो अभी डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशन कभी कभी होगा टोटल डिस्टेंस दिया होगा कि लाइक टोटल अप स्ट्रीम प्लस टोटल डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस मच, एंड जो अप स्ट्रीम है दैट हैज बीन लाइक ट्रेवल्ड इन 10 आवर्स, डाउन स्ट्रीम हैज बीन ट्रेवल्ड फॉर 15 आवर्स। तो दिस यू विल मेक द इक्वेशन। तो 10 आवर में अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम, तो d1 प्लस d2 इक्वल टू टोटल डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनती है। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अ मैन कैन रो 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो वाली इक्वेशन बनेगी 50 अपॉन, अब बोट की स्ट्रीम एक्स ले लो स्पीड, और स्ट्रीम या रिवर की वाई ले लो करंट की स्पीड। करंट बेसिकली रिवर की स्पीड होती है, ठीक है। एक्स अप स्ट्रीम है तो माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम 72 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टोटल टाइम 9 हो जाएगा। ये T1 है ना, ये T2 है। अप स्ट्रीम डिस्टेंस इतनी है, स्पीड इतनी है, टाइम इतना आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इतनी है, स्पीड इतनी है, टाइम आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बना लो। एंड नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट द सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम एग्जाम में होती है कि अगर ऑप्शन दिए होते तो हम ट्राई कर लेते, हिट एंड ट्रायल, थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, बट वी आर एबल टू रीच द सॉल्यूशन। बट अगर ऑप्शन नहीं है तो दिस इज कॉम्प्लिकेट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज कॉम्प्लिकेट, दिस इज डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। और स्पेशली जब नंबर्स डिफिकल्ट होते जाएंगे, जितना नंबर्स को कॉम्प्लिकेट बना देंगे उतना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, नॉट इम्पॉसिबल, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा इस इक्वेशंस को सॉल्व कर, ठीक है। तो आई एम गोना टेल, तो ये इक्वेशन बनाना आ गई, ये सॉल्व कर लोगे, इतना अगर तुम्हें पता है दैट इज इनफ। बट एग्जाम में प्रेशर सिचुएशन में अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते हो तो कोई मतलब नहीं होता इस इक्वेशन बनाने का। तो आई एम गोना टेल यू टू अप्रोचेस टू डील विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। एक तो काम, सिंपल सा काम क्या कर सकते हो, एक्स माइनस वाई को अज्यूम कर लो, और लेट्स से कैपिटल एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को अज्यूम कर लो कैपिटल वाई, सॉल्व कर लो। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोना डू, ये बेसिकली इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड होता है। आई एम गोना डू एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। या फिर मैं ये भी ना करता, बट चलो अभी कर लेते हैं। नाउ आई विल ट्राई टू मेक दिस इक्वल, ये 9 है, ये 12 है, तो आई विल किससे, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 है
3 यहाँ कर दे, 36 है ना, 36, 36। अगेन ये जस्ट मैं इक्वेशन सॉल्व करना बता रहा हूँ, क्वेश्चन हो गया, लाइक अब तुम इक्वेशन अगर सॉल्व कर लोगे देन देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता, जस्ट इक्वेशन डील करना मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, नथिंग एल्स। इसे 4 से करूँ, इसे 3 से करूँ, तो दिस विल बिकम, इसकी जो नई इक्वेशन आएगी 200 and 70 to 4 that is 288, that is 30, and this is 210 and this is 270, 36। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, आई कैन इक्वेट बोथ देम, तो दिस इज, अब अगर मैं इक्वेट करूंगा तो देखो फाइनली क्या होगा, इसको चलो अभी एक ऐसे हटा दें, अगर हम, चलो ऐसे कर लेते हैं, तो इसको अगर करोगे तो कितना आएगा, अगर इक्वेट करोगे बेसिकली तो ये इधर को जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो दिस इज 210 आएगा, ये 10 एक्स की वैल्यू कितना, एक्स यहाँ पर करने के कितना, दैट वाज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, ये कितना आएगा 18, 18 आएगा ना, 18, एंड ये तुम्हारा क्या था, एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से देखो क्या होगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 18 अपॉन 10, दिस इज 5, दिस इज 9, एंड इफ यू नो व्हाट इज दिस कंपेंडो डिवेंडो, किसी को आइडिया है? तो कंपेंडो डिवेंडो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई 3:2 सपोज लिखा हुआ है, अगर सपोज ये लिखा हो, देन यू कैन राइट, क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वाई को ऊपर ऐड कर दो और ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 + 2, 3 - 2, दिस इज कॉल्ड कंपेंडो डिवेंडो। आई एम गोना अप्लाई दिस थिंग हियर, वरना चाहो तुम इसको ऐसे लाइक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा, बट कंपेंडो डिवेंडो से करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, यू कैन डू एनी वे, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक एक्स प्लस वाई, 5x + 5y equals to 9x - 9y, so this is 4x and this is 9 इधर आएगा तो 14y, so that is 2 और 7, तो x y 7:2 रेशियो आ गया, x और y का रेशियो 7:2 आ गया, तो बेसिकली रेशियो निकालना है कैसे भी करके, और अगर कंपेंडो डिवेंडो में लगा दूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे, 9 5 14 हो जाएगा, ये देखो ऊपर ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, नीचे जब सब्ट्रैक्ट करोगे x + y माइनस ये करोगे तो नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज 4, दिस इज 7:2, कंपेटिव डिवेंडर से डायरेक्ट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, फिर वापस आते हैं हम अपनी इक्वेशन पे, एक्स और वाई का मैंने वो निकाल लिया और ये सब मैं बीच की चीज़ें हटा रहा हूँ, रिमूविंग ऑल दिस, इसे भी हटा दो, इसका कोई बहुत यूज़ नहीं रहता यहाँ पर, जस्ट मैंने वो किया था उस पर फोकस करो कि मैंने इन दोनों को इक्वल किया था, इस पर फोकस रखो, ये तुम्हारा एक्स माइनस वाई था, दिस, दिस वॉज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, दिस वॉज एक्स प्लस वाई, वॉज एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एंड ये रेड वाले पे ये भी रखना, ठीक है, फोकस, रिमूविंग एक्स माइनस एक्स वाई 7:2, एक्स वाई 7:2 है, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ रेड वाली इक्वेशन पे फोकस करो, लाइक इस पे भी कर सकते हो बट इस पे थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, लाइक बिकॉज नंबर्स बढ़ गए है ना, तो अब एक्स इसमें वैल्यू पुट कर दो, 7a और 2 है ना, तो दिस इज 5a एंड 9a, 9, दिस इज 10/a, 8/a, 9, दैट इज 18/a, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, इज इट आर नॉट, a की वैल्यू 2 आ गई तो तुम्हारी स्पीड्स आ गई दोनों, 14 और 4 इज योर आंसर, स्पीड ऑफ करंट विल बी 4। आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज द वन अप्रोच, एक अप्रोच था कि मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को इक्वेट करके सिंपलीफाई कर लिया, दिस वाज द वन वे। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका 50 किलोमीटर, यहाँ पर अप स्ट्रीम लिखो, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम लिखो,
और टोटल टाइम निकालो। ये जस्ट इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका इस टाइप का, इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। दिस इज जस्ट अ वे टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, नथिंग एल्स। लाइक ऐसे अगर इक्वेशन दी होती तो भाई 50/x 72/y 9, तो इन इक्वेशंस को भी तुम यही मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है ना, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, इस कॉन्सेप्ट से इतना कोई बोट एंड स्ट्रीम से कोई इसका मतलब नहीं है बहुत। 70, 90 एंड 12। नाउ व्हाट यू विल ट्राई टू डू, एक हम इक्वेशन एक और क्रिएट करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आई विल क्रिएट अ इक्वेशन, एक लाइक कॉमन इक्वेशन, बेस इक्वेशन, वॉट एवर यू कैन से इट, विल क्रिएट अ इक्वेशन। तो जो ये इक्वेशन है इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज -20 आ जाएगा, एंड -18 एंड -3 है, -20 -18 मैं जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3 ये आ गया। तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे, लाइक आई वुड रिकमेंड कि यार तीनों ही मेथड पता हूँ, लाइक बेसिक मेथड फिर ये दोनों मेथड, डिपेंडिंग ऑन कि एग्जाम में कैलकुलेशन कैसा आता है यूज करना। अदरवाइज आई थिंक ये वाला मेथड आसानी से सब पे इम्प्लीफाई हो जाएगा, इजिली कर पाओगे। ये जो फाइनल मेथड, लास्ट वाले मेथड में कभी कभी दिक्कत होगी कि ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू डील। मल्टीप्लाई करके जो मैंने किया था, लाइक सपोज नंबर दिया हो लाइक 26 है ना, और 55, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम है। तो ये उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है। अब क्या करना है तुम्हें, इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इज 80, दिस 72 एंड दिस इज -6। अच्छा, ये अपने आप चेक करना ऐसा क्यों हो रहा है, वाई वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड दिस टू। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो -30, और ये जीरो हो गया। एम मेरा यही था कि एक बार डाउन स्ट्रीम को जीरो कर दो, एक बार अप स्ट्रीम को जीरो कर दो, ठीक है। अभी मैंने डाउन स्ट्रीम को जीरो कर दिया, तो दिस इज 3 है ना, 9 क्या किया मैं, हमने ऐड ही किया ना, सो 9 - 6 दैट इज, अच्छा ये भी मल्टीप्लाई हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करना, तो दिस इज 12, दिस इज 12, तो दिस इज -3। तो अब इसका मतलब समझ लो, जो टाइम है तुम्हारा दैट इज 3 आवर टू कवर 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। टाइम इज 3 आवर टू कवर 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। इसका मतलब ये है, यू विल कवर 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, अप स्ट्रीम तुम्हारी स्पीड हो गई x - y। अप स्ट्रीम स्पीड यही होती है, स्पीड ऑफ तुम्हारा बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट, सो दैट इज 30/3, दैट इज 10 किलोमीटर/आवर। सो दिस इज इक्वेशन। अब ऐसे दूसरी इक्वेशन बनाओगे, यू विल मेक द अदर इक्वेशन, यू विल मेक द अदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी तुम्हारी, अब हमारा एम है अप स्ट्रीम को कैंसिल आउट करना, अप स्ट्रीम को कैंसिल आउट करना। अप स्ट्रीम को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम कैसे, अ, अगर मैं इसको 50 बना दूँ या फिर 70 बना दूँ। 50 बनाना आई थिंक आसान है, 50 बनाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, तो दैट इज 50 एंड 18 इंटू 2.5, तो दैट इज 36, एंड 36 में 9 कितना होता है 45, 18 2 36, मैंने देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया है, 18 2 प्लस 0.5, 18 2 36, 36 में 9 दैट इज 45, एंड 2.5 से कर रहे ना, 2.5 से, तो 2.5 दैट इज 7.5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, किसी भी क्वेश्चन को लेके कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों बार यही, जिससे तुम्हें कैलकुलेशन आसान पड़े, यू कैन मल्टीप्लाई विद द 3.5 ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 45, दैट इज 7, 27 ना, 27, 27, एंड दिस इज 1.5, 1.5। सो अब ये 1.5 आवर इट टेक्स
टू कवर डाउन स्ट्रीम 27, तो 27 अपॉन 1.5, that will be like 3 9 18 है ना, 15 8 जाओ, 15 18 जाओ, 270 होगा, क्योंकि 15 9 जा होता है 135, तो 15 18। तो सॉल्व हुआ क्वेश्चन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, x plus y equals to 18 and x minus y equals to 10 and you have to find the speed of current। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2y एंड 8। वैसे स्टार्टिंग में मैंने जो तुम्हें बताया था उससे कर ली है ना, लाइक क्वेश्चन भी सॉल्व करने जो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, ये अप स्ट्रीम स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये अप स्ट्रीम स्पीड है एंड यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ इसका करंट का निकालना है। तो करंट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट अपॉन हाफ करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज हाफ, 4 ही आ रहा था ना वहां पर भी, तो दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर, वहां पर भी 4 आ रहा था। तो दीज आर द वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द इक्वेशन, नथिंग एल्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बोट टेक्स टोटल 11 आवर टू ट्रेवल 12 एंड 18, तो अप 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम टोटल टाइम। अब मैं सिर्फ लास्ट वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तुम यू हैव टू यूज ऑल द 3 मेथड्स, तुम्हें सारे मेथड से ट्राई करना है, तभी देखो सेशन पूरा ये देखने का फायदा होगा। अदरवाइज सिर्फ तुम बैठ के देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, देन इट विल नॉट बी हेल्पफुल अनटिल अनलेस यू पुट योर वर्क। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जैसे तुम्हें खुद से सारे ट्राई करने, तो हर क्वेश्चन के लिए वो चीज़ करो जहाँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन वे। सारी चीज़ें तुम्हें तीनों मेथड से करके देखनी होंगी कि हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने बता दिया, तुमने मान लिया है ना, दिस शुड नॉट हैपन। एग्जाम में तो मैं नहीं होऊंगा, एग्जाम में तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, तो यू हैव टू ट्राई ऑल द 3 मेथड्स। टोटल टाइम 11 आवर एंड सेम बोट man takes 9 hours to travel downstream 18 upstream 12 in 9 hours। जिन्होंने लाइक एग्जाम दिया होगा, जिन्होंने मॉक वॉक दिया, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सच में, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो लाइक एक और तरीका है, वो एक केस होता है, आई विल नॉट टेल यू। चलो देखो वो केस, देखो केस क्या होता है जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है। इसका सम देखो 30 आ रहा है, इसका सम 30 आ रहा है, देन यू कैन यूज अ मेथड, बट आई विल नॉट टेल यू दैट। ठीक है, वो एक केस हो जाएगा पर्टिकुलरली, तो अननेसेसरी याद करने का कोई मतलब नहीं है, बट हो सकता है एग्जाम में आ जाए, है ना। सो आई विल नॉट टेल यू नाउ, बाद में कभी बताता हूँ। अभी तो इसी मेथड से करते हैं, अभी तो ऐसे ही करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज -6, दिस इज 6 एंड इस वजह से देखो ऐसे भी आसान होगा, यू डोंट नीड टू वरी कि लाइक मैंने वो नहीं बताया। सेम ही टाइम लगभग लगेगा, थोड़ा बल्कि थोड़ा टाइम उधर बच जाएगा, 20-30 मैक्स टू मैक्स 20-30 सेकंड्स का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हमारी इक्वेशन होगी, एक कॉमन इक्वेशन, बेस इक्वेशन, वॉट एवर यू कैन से। अब एक बार डी को कैंसिल कर दें, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, दिस इज 30, दिस इज 15। तो तुम्हारा अप स्ट्रीम जो आया दैट इज 2, 15/2 ना, 15 आवर में 30 किलोमीटर ट्रेवल होता है ना अप स्ट्रीम के, तो अप स्ट्रीम की स्पीड ये आ गई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अब ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल करने के लिए इक्वेशन सेम ही रहेगी, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, हमने ऐड किया है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा, इससे कर रहे हैं हम, इस वाली इक्वेशन से, नहीं नहीं, ये इस वाली इक्वेशन से करते हैं ना, इस इक्वेशन से करेंगे तब ये 12 कैंसिल होगा, या फिर दूसरी इक्वेशन बना सकते हो, बट एक इक्वेशन ही दिख रही है तो क्यों बनाना दूसरी। जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दे सेकंड वाली इक्वेशन से। अब पहले हमने इस वाले से किया था क्योंकि ये सेम था, यहाँ पर देखो ये सेम हो रहा है, तो अप स्ट्रीम कैंसिल हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हमें निकालना है। 6 9 -4 दैट इज 5, 9 -4 दैट इज 5, ठीक है ना, एवरीथिंग फाइन। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6/5। तो 6/5 अगर देखो तो 1.2 है, 6/5 1.2, 2 2 4 9 4 5, वी आर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो ये ऐड होगा। भाई मैं सोचा कम क्यों आ रहा है, एक्स प्लस वाई ज़्यादा आएगा ना, लाइक ये ऐड होगा।
जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये माइनस होंगे, तो दिस इज 30, 18 + 12 दैट इज 30, तो दैट इज 6। तुम्हें स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते हैं, 6 - 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 किलोमीटर पर। आई होप ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको उस वाले मेथड से करते तो देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता। कौन सा मेथड मैं बता रहा हूँ, लाइक अप स्ट्रीम टोटल टाइम दैट इज 12, डाउन स्ट्रीम 18 एंड 11, 9, 12 एंड इसको अगर अब जो ये वाला मेथड, इन दोनों को अगर इक्वेट करो, इन दोनों को अगर इक्वेट करके करो सेकंड मेथड, अगर उससे करोगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि नंबर्स बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर तुम्हें 9 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना है, देन इक्वेट करना है। और अगर ये नंबर और बड़े होते, सपोज ये होता 118, 1112, है ना, 218, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। बट यहाँ पर आई थिंक इतना प्रॉब्लम अगेन नहीं होगा, क्योंकि नंबर छोटे हैं। 89 सबको पता होता है, 18 20 तक टेबल याद रखो, डेट विल नॉट बी प्रॉब्लम। ओके, तो ट्राई कर लेना, इस मेथड से भी सोल्व कर लेना। बाकी कभी मैं तुमको बताऊंगा कि लाइक ये जब दोनों सेम होते हैं तब और आसानी से इसको किया जा सकता है। दैट विल डू लेटर ऑन। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। और बोट एंड स्ट्रीम आई थिंक इतना ही है। एंड इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने सारे कवर किए हैं, है ना, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, D = ST वाला इक्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस, एंड इफ यू हैव जस्ट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बस प्रॉब्लम इस इक्वेशन में आती है इक्वेशन सॉल्व करने में, नथिंग एल्स। तो मैंने उसका भी तरीका बता दिया कैसे तुम डील कर सकते हो। जनरली हम एग्जाम में क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हो, फिर ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं। बट अब क्या होता है, अब टीटा क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देयर विल नॉट बी ऑप्शन, तब क्या करोगे। तो दैट्स वाई दीज आर द 2 ways दैट आई टोल्ड यू, दिस विल बी इजियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। So make sure you join the Telegram channel as well as group. Description में दोनों का link है. I hope you have liked the video and subscribe to channel also. Share with your friends that are preparing for CAT. So that's it. Let's see you in the next video.